Neeraj Agarwal and CA Rishabh Jain in CASA Monday Manthan online knowledge sharing series. Today's topic is fundamental analysis of stock market and recommendation. I introduce speaker CA Ajay Singhal. He is by profession CA, CS, ICWA and ex-secretary of NIRC of ICAI. More than 30 years of experience, he is a rank holder in CA final exams held in November 1992 and is the member of ICAI since January 1993. He is expert in capital market, stock market, and has taken many sessions on this topic. Now I introduce panel CA Rishabh Jain and Neeraj S. Agarwal. Both are fellow members of ICAI and actively working in stock market. Now I introduce CA Sumit Garg as he is a fellow member of ICAI having 18 plus years of experience. He has also served as a secretary of NIRC of ICAI during his tenure of NIRC Regional Council member. He is a founder of CASA. CASA has been serving CA profession since 2010. CA Sumit Garg with his team always believe in grooming young CAs, sharing knowledge through regular webinar and seminars by expert faculties and various other activities for welfare of CA profession. Now I invite CA Sumit ji to say a few words. You are on mute. I think you are mute now. You are on mute, Sumit. Okay. Sorry. Once again, thank you, Monica ji, for wonderful introduction. And I welcome C. Ajay Singhal ji, my elder brother, to this platform for sharing your valuable knowledge for your inputs about the stock market. Our panelist Rishabh ji and Neeraj ji is also here. Asha ji from the management team and many more members are there. And I think सभी जो आज वेट कर रहे हैं कि अजय सर से हम क्या मार्केट के ऐसे फंडामेंटल्स के बारे में सुनना चाहते हैं, क्योंकि आज मार्केट ने भी कहीं ना कहीं ग्रीन सिग्नल दिए हैं, जो कि कल मोदी 3.0 की वापसी होने वाली है। उसके रिगार्डिंग जो आज मार्केट ने सिग्नल्स दिए उनको कैसे एनालाइज करें, किस सेक्टर्स में निवेश करना बेटर रहेगा, किस सेक्टर्स में नहीं बेटर है, क्या इन ग्रीन सिग्नल्स का मतलब समझा जाए। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके आंसर हम खोजने की समझने की कोशिश करेंगे अजय जी के द्वारा। बाकी सभी मेंबर्स जो पार्टिसिपेंट डिफरेंट सिटीज से जुड़े हुए हैं उन सभी का स्वागत, और उम्मीद है कि आफ्टर दिस live webinar many members will join through YouTube recording. So with this once again welcome Ajay sir in this platform. अजय सर के साथ हमने NIRC में भी टेन्योर साझा किया है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और आज हम शेयर मार्केट के बारे में सुनने का प्रयास करेंगे। So over to you Ajay sir for your technical and fundamental analysis. Thank you Monica ji for introducing myself and Sumit, my younger brother. We both hails from the same city, Etawah in UP. तो सुमित के फादर और हम बचपन में काफ़ी हमारा जो बिजनेस है एक ही जगह है, सेम मंडी में, तो काफ़ी कनेक्टेड रहे हैं बचपन से। और बाद में सुमित का छोटा भाई भी हमारे साथ आया था आर्टिकलशिप के लिए, और फिर सुमित आया तो बहुत अच्छा लगता है जब अपने कहते हैं ना अपने शहर से कोई यंग बच्चा आ करके और इतना ग्रो करे। सो आई रियली अपलॉड योर सक्सेस सुमित, एंड all your success. Good luck for your coming in the Central Council elections. So दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो फंडामेंटल एनालिसिस पर है। हम चार्टर्ड अकाउंटेंट कहते हैं ना कि फाइनेंशियल मार्केट के बहुत ही बड़े ज्ञाता है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि केवल वो जो हमारी जो फाइनेंशियल नॉलेज है केवल वही सफिशिएंट नहीं है स्टॉक मार्केट में अगर सक्सेस होना है। इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको हम स्टडी करते हैं। अगर उन फैक्टर्स को हम अच्छे से समझ लें तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आपकी जो नॉलेज है या स्टॉक मार्केट को समझने की जो अंडरस्टैंडिंग है वो कई गुना बढ़ सकती है। पहले जब मैं स्टॉक मार्केट में कहते ना जब फुल टाइम नहीं था तो मैं भी मानता था कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरे को सब कुछ आता है, बट आई थिंक आई वाज रॉन्ग इन दैट वे। ऐसा नहीं होता है कि हमें सब कुछ आता है। तो what I am saying, the financials of a company is one part, so there are other factors also. तो today आज जब हम फंडामेंटल एनालिसिस की बात करेंगे
उसका तो ऑफकोर्स जो आज का मार्केट का मूवमेंट रहा है या उससे पहले जो मार्केट में जो अनसर्टेनिटी क्रिएट की गई है उस पर भी हम एक चर्चा करेंगे कि उस अनसर्टेनिटी से निपटने के लिए हमें क्या करना चाहिए एंड व्हाट स्टेप्स वी शुड टेक। सो आपको अभी मैंने जो एक आपका ऑप्शन आया था कि नॉलेज सॉरी दिस which language I want to use. So I will mix and match. I will, I think we both are conversant with the English and the Hindi. So एक कहते हैं ना इंटरेक्शन को अच्छा बनाने के लिए दोनों लैंग्वेज का होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ मैं ये भी चाहूंगा कि ये जो हमारा जो इंटरेक्शन है ना वो इंटरेक्शन मोड में ही रहे। तो सुमित भाई मैं ये चाहूंगा ना कि इंटरेक्शन के लिए बीच बीच में अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछूंगा तो उसके आंसर आना जरूर है, ठीक है। बल्कि स्टॉक मार्केट Yes, में sir. मैं Yes, sir. एक और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वक्त, अगर स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है ना तो एक फिजिकल सेमिनार कराऊंगा। अगर पैसा कमाना है तो तुमने तो कमा लिए, बाकियों को तो कमाने दो। तो फिजिकल सेमिनार कराना बहुत जरूरी है, जिसमें क्या है ना बहुत सारी चीजें फिजिकली हम एक दूसरे को समझ सकते हैं उस चीज को लेकर। स्क्रीन शेयरिंग हम कैसे करेंगे सुनील? सर आप ये ग्रीन बटन दिख रहा होगा बॉटम में, इस Yes, शेयर yes. स्क्रीन, इस पे क्लिक कीजिए। आ गया ना? आ रहा है सर। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू। Yes. स्लाइड आ गई सर। Okay. यस सर, So राइट सर। दोस्तों, my topic is today's fundamental analysis with equity research, right? इंट्रोडक्शन आप मतलब मोनिका जी ने ऑलरेडी कवर कर लिया तो उसको मैं नहीं रुकूंगा। रिस्क डिस्क्लोजर, ये बेसिकली ये रिस्क डिस्क्लोजर क्या है? अगर आप देखें अभी हाल ही में 1 साल से सेबी की किसी भी आप न्यूज चैनल देखेंगे या कोई अपना जब आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो उस पर रिस्क डिस्क्लोजर आ जाता है, राइट? व्हाट इज द रिस्क डिस्क्लोजर? इक्विटी मार्केट में जब हम बात करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस की, ऑफ कोर्स हमारा आज फ्यूचर ऑप्शन का टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर एक इस इशू को डिस्कस करना चाहूंगा। मैं सभी पैनलिस्ट से ये रिक्वेस्ट भी करूंगा, सभी पार्टिसिपेंट से, कि जब तक आपके पास सफिशिएंट टाइम ना हो, सफिशिएंट टाइम मीन्स जब तक आप मार्केट में फुल टाइम ना हो तब तक आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस या इंट्राडे ट्रेडिंग से दूर रहिए, राइट? क्योंकि बीइंग इन प्रैक्टिस हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम पूरे दिन मार्केट में लगे रहें, मार्केट को हम समझ पाए। उससे होता क्या है कि हमने कोई पोजीशन ली है और मार्केट में आप देखते हैं कि इतना ज्यादा वेरिएशन होता है तो हम पैनिक में आकर के लॉस बुक कर लेते हैं, राइट? तो वो हमें बचना चाहिए। तो 9 आउट ऑफ द 10 इंडिविजुअल ट्रेडर्स इन इक्विटी फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट इनकर्स लॉसेस। मतलब 90%, इसके मतलब क्या हुआ कि मार्केट में केवल 10% लोग पैसा कमा रहे हैं। Only and only 9 to 10% people are earning money as far as the future options are concerned. तो जब 90% लोगों को नुकसान हो रहा है तो इसका मतलब है हम लोगों को अलग रहना चाहिए। On an average, loss makers registered net trading loss of rupees 50,000. 50,000 एवरेज लॉस अगर सबको कंबाइन कर दिया जाए तो ये कितना बड़ा लॉस है। तो इस चीज के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी से, जब तक आपके पास सफिशिएंट टाइम ना हो, sufficient understanding and knowledge ना हो, until then you should stay away from the future and option, right? आज की हमारा जो प्रेजेंटेशन है उसका कंटेंट हमारा रहेगा अंडरस्टैंडिंग फंडामेंटल एनालिसिस, कंपोनेंट ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं इसके, और इसको हम फंडामेंटल एनालिसिस को कैसे और कहां पर यूज करेंगे। तो स्टार्टिंग विद अंडरस्टैंडिंग फंडामेंटल एनालिसिस, द डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस इज fundamental analysis is a method of evaluating the intrinsic value of a stock. Intrinsic value of a stock का मतलब क्या होता है कि जिस किसी स्टॉक को प्राइस को जो हम परचेज करने जा रहे हैं तो वो स्टॉक का प्राइस एक्चुअल में ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, राइट? Evaluating the intrinsic value of a stock by examining the company's financial health, industry-based trends and macroeconomic factors to determine its worth. आज हम बात करें, कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं बहुत अंडर प्राइस स्टॉक्स हैं, बहुत सारे स्टॉक्स जो ओवर प्राइस है। तो हाउ वी कैन फाइंड दोज स्टॉक्स एज अंडर प्राइस स्टॉक्स और ओवर वैल्यूड स्टॉक्स, उसके बेस पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए।
What is the purpose of this fundamental analysis? It helps the investor to understand. Just a minute. It helps the investor to understand the basic premise on which a business rests and assess whether a stock is overvalued or undervalued. I've already covered this. Now coming to the analysis portion. Investor sentiment and market dynamics. Importance of fundamental analysis. Security price reflect investor sentiment and expectations. What does it mean? अभी आप देखा जाए, are you listening us? Listening me? Okay. अभी 2 दिन पहले की हम बात करें आपसे, फ्राइडे और थर्सडे की बात करें, तो क्या मार्केट में सेंटिमेंट बनाए गए थे? आप लोगों को पता है क्या सेंटिमेंट थे? आज जो हमारा जो अभी जनरल इलेक्शन जो चल रहा है, जो कि अभी जिसका फर्स्ट फेज हमारा लास्ट फेज जो है 1 जून को कंप्लीट हुआ है, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया गया था कि रूलिंग पार्टी आ रही है या नहीं आ रही। तो ये जो सेंटिमेंट थे, इस सेंटिमेंट को जिसने एनालाइज कर लिया, आज वो सच बताऊं तो किंग है आज वो, कि क्या ये जो मार्केट में जो रूमर्स चल रही हैं, इस टाइप का जो एटमॉस्फेयर बनाया जा रहा है, क्या वो सही है या वो गलत है। तो अगर हम इस चीज को समझ लें इस अंडरस्टैंडिंग से, तो हम मार्केट को कहीं ना कहीं बहुत हद तक वी कैन इनकैश द मार्केट। Investor sentiment and market dynamics. Security price reflect investor sentiment and expectations, making market predictions challenging due to human behavior unpredictability. आप एक ह्यूमन का जो साइकोलॉजी जो है ना, वो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है। हमारे पास पेशेंस नहीं है। अगर इक्विटी मार्केट में अगर देखा जाए तो हमें बहुत कुछ पेशेंस, अगर हमने पेशेंस करना सीख लिया इक्विटी मार्केट में, तो आई एम श्योर हम मार्केट को बहुत अच्छे तरह से समझ सकते हैं। Predicting prices. Forecasting security prices depends on understanding investor expectations rather than just intrinsic value. Intrinsic value जो हम निकालते हैं, उसमें एक एस्पेक्ट हमारा है फाइनेंशियल एस्पेक्ट, और बाकी इसके अलावा और भी एस्पेक्ट इसको अभी मैं कवर करूंगा। तो इस जब हम इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग बताया था कि वो प्राइस जिस प्राइस पे स्टॉक अवेलेबल है मार्केट में, क्या वो अंडर प्राइस है या ओवर प्राइस है। कुछ ऐसे आप शेयर देखोगे जिसका पी रेशियो आप निकालोगे किसी का 100 है, और कुछ ऐसे स्टॉक भी हैं जिसका पी रेशियो 5 है, राइट। अगर हम पब्लिक से बात कर रहे हैं या इन्वेस्टर से बात करें, तो उनको 5 वाला पी रेशियो अच्छा नहीं लगता है, 100 वाला पी रेशियो अच्छा लगता है। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग है कि हमें कौन सा स्टॉक में हमें वैल्यू ज्यादा दिखाई दे रही है। तो फोरकास्टिंग सिक्योरिटी प्राइस डिपेंड्स ऑन अंडरस्टैंडिंग इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशंस rather than just intrinsic value, influencing market trends and investment strategies. आप मार्केट ट्रेंड्स की बात करें, आज की डेट में आप देख रहे हैं कि मार्केट ट्रेंड में आप देखा जाए तो कौन सा ऐसा सेक्टर है या कौन सा ऐसा स्टॉक सबसे ज्यादा चल रहा है। तो मैं तो यही कहूंगा, अगर आप पिछले 1.5 साल से या 2 साल से देखें, तो पब्लिक सेक्टर एक ऐसा है जो कि मार्केट में एक ही सेंटीमेंट चल रहा है, पब्लिक सेक्टर। 2020 की बात करें, 2020 से या खत्म होने की बात करें या 21 की बात करें, तो पब्लिक सेक्टर पे कोई हाथ नहीं रखता। 2022 से पब्लिक सेक्टर में कोई हाथ नहीं रखता था शेयर्स में। मैं कह के परेशान हो गया हूं कि भैया पब्लिक सेक्टर में वी आर सीइंग द वैल्यू, पर लोगों को नहीं समझ में आता है। तो लोगों को क्या है कि जो न्यू इकोनॉमी दिखाई दे रही थी, या जैसे पेटीएम का स्टॉक आया, पेटीएम की स्टॉक की बात करें, क्या इश्यू प्राइस था 2150 रुपए। क्या कभी किसी ने सोचा कि ये जो वैल्यूएशन है ये सस्टेनेबल है कि नहीं है। उसका जो पी रेशियो है इट वाज मोर देन 100। क्या इस पी रेशियो पर कंपनी आने वाले कुछ सालों में प्रॉफिट में आ सकती है क्या? और आ सकती है तो इन्वेस्टर को क्या रिटर्न करेगा। और अगर रिटर्न भी कर रहा है इन्वेस्टर को, तो 2150 का वैल्यूएशन मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट था। आई थिंक दैट वाज द ओनली रीजन पब्लिक ने बहुत पैसा उसमें लूज किया। Then coming to using fundamental and technical analysis. There are 2 analysis, fundamental and technical. Fundamental analysis, both fundamental and technical analysis are crucial for investors to maximize profit and navigate market complexity effectively. अभी होता क्या है, आज आप 80% या 90% लोगों से पूछोगे
वो स्टॉक को खरीद तो लेते हैं पर वो बेच नहीं पाते, क्योंकि उनको एंट्री करनी आती है, किसी ने बोल दिया उन्होंने खरीद लिया, बट जब वो बेचने की बात आती है तब वो बेच नहीं पाते। उसका रीजन क्या है कि वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं व्हाट वैल्यू सूट्स मी एंड व्हाट इज एक्चुअल प्राइस जिस पर हमें निकलना चाहिए। तो उसमें क्या होता है, वो अल्टीमेटली वो बेच ही नहीं पाए। जब वो बेच नहीं पाएगा तो क्या होगा, वो स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में पड़ा रहेगा, प्रॉफिट बुक नहीं करोगे तो अल्टीमेटली आपको या तो वो पड़ा रहेगा आप, या अल्टीमेटली होता क्या है कि आप किसी अपॉर्चुनिटी, डिफरेंट अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हो उसके लिए। एक में आप प्रॉफिट बुक करो, फिर आप दूसरे में भी इन्वेस्ट करते हो, तो जो आपको दिखाई दे रहा जिसका वैल्यूएशन बहुत कम है, बहुत चीप है, तो उसमें स्विच कर सकते हैं। Fundamental analysis versus technical analysis. What is fundamental analysis? Calculate the stock's intrinsic value, uses financial data, company and sector information. एक कंपनी का डाटा है वो यूज करते हैं हम, कंपनी का डाटा के साथ साथ सेक्टर की, किस कंपनी, वो कंपनी किस सेक्टर में ऑपरेट करती है। आज की डेट में हम बात कर रहे हैं कि आईटी सेक्टर, आईटी सेक्टर बाय एंड लार्ज परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो उससे रिलेटेड जितनी भी कंपनी होगी वो आप देखोगे उसका जो प्राइस मूवमेंट है वो एक पर्टिकुलर रेंज में घूम रहा है। सो ये जो है दैट इज नॉट ए नाउ नॉट ए इन्वेस्टमेंट ग्रेड शेयर्स अकॉर्डिंग टू मी, इट इज अ स्पेकुलेशन एक्टिविटी। या आपको ये लेवल आता है कि हम 5% हमें प्रॉफिट मिल जाएगा या 7% मिल जाएगा, मैं बेच के निकल जाऊंगा, फिर मैं वेट करूंगा नीचे आएगा तो खरीद लूंगा, तब तो बात अलग है। अदरवाइज आज की डेट में या पिछले 1-1.5-2 साल से आईटी के स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट ग्रेड में नहीं है। Uses financial data, company and sector information. Then comes to long-term horizon. When we are doing investment, our horizon should be long-term, ना कि ये है कि हम short term की बात करें कि 10-15 दिन के लिए हमें इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसके लिए आपको टेक्निकल पर बहुत ज्यादा जाना है। एंड इट इज सुटेबल फॉर द इन्वेस्टर्स, बिकॉज यहाँ पर क्या है कि हम कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं वो हो सकता है वो एक दिन में रिस्पॉन्ड नहीं करे, एक महीने में नहीं करे, कभी कभी सालों में भी नहीं करता है, लेकिन जब उसके जो एक्चुअल जो फंडामेंटल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं जब निकल कर आते हैं तो वो फिर ऐसे चलते हैं कि आप ये देख लीजिएगा तो उसको रोकने वाला कोई नहीं। आज हम मैं बात करूं पब्लिक सेक्टर, कमिंग बैक टू पब्लिक सेक्टर, 2021 से पहले पब्लिक सेक्टर के क्या हालत थी, या 2014 में जब ये प्रेजेंट गवर्नमेंट मोदी गवर्नमेंट आई थी तब उससे पहले पब्लिक सेक्टर के क्या हाल थे। वहां से पब्लिक सेक्टर में कैपिटलाइजेशन करते करते जो पुराना मैनेजमेंट था उसको ठीक करते करते मैनेजमेंट को एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट की शेप में लाते हुए आज हम पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस की हम वर्किंग की बात करें तो वो वर्किंग जाकर के मैनीफोल्ड वर्किंग में कन्वर्ट हो चुकी है, राइट। देन कमिंग टू टेक्निकल एनालिसिस, प्रिडिक्ट फ्यूचर प्राइस मूवमेंट। बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस में हम जनरली हम जो चार्ट्स वगैरह हैं या डाटा एनालिसिस वगैरह हैं ये देखते हैं, तो उससे क्या हमें फ्यूचर प्राइस का एक मूवमेंट निकालते हैं। इज स्टॉक प्राइस एंड ट्रेडिंग वॉल्यूम डाटा। अभी हम बात करें इसी स्टॉक को हम देखते हैं ना, ट्रेडिंग प्राइस वॉल्यूम डाटा, जैसे कि हम बात करते हैं वीवैप की, वॉल्यूम एंड वेटेड एवरेज प्राइस। तो ये जो एनालिसिस है टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है और उससे हमें बहुत सारे हमें करंट ट्रेंड उससे पता लगता है मार्केट का या किसी पर्टिकुलर स्टॉक का। एंड ये दिस इन्वेस्टमेंट और लाइक दिस बाइंग इज फॉर द शॉर्ट टर्म पीरियड एंड दिस इज सुटेबल फॉर द ट्रेडर्स। What are the pros and cons of fundamental analysis? Advantages are useful for long-term investment and provide a complete view of the financial aspect of a company or of a particular sector or a stock. Disadvantage क्या है? Requires financial data and cannot be analyzed by all. A lengthy complex process. बहुत ही डाटा इतना ज्यादा होता है तो उसको हमें एनालाइज करने में प्रोसेस बहुत ज्यादा लगता है, टाइम बहुत ज्यादा लगता है। Then components of fundamental analysis. Components means first and the most important component I'll say is the economic analysis. हम कंपनी की बात सबसे लास्ट में करेंगे, पहले हम बात करेंगे एनवायरनमेंट क्या है। आज जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं, लेट कम टू इंडिया। आज भारत की जो इकोनॉमी है, अभी जो फाइनेंशियल ईयर 2024 का जो डाटा आया है उसमें 8.2% की ग्रोथ आई है।
full year की. So that is the bird's best growth. From all parameters, Indian economy is doing the fantastic during this period. So that means anybody who is coming India and investing it, or any industry operating in India, will do better because overall economy is doing better. Then coming to industry analysis, involves examining global demand, supply dynamics, and the lifestyle stage of the industry. अब बात वही आ गई है कि हम इंडस्ट्री की बात करें कि आज आईटी सेक्टर की हम बात करते हैं तो उसमें क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, क्या गाइडेंस आ रही है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है. आज हम बात कर रहे हैं कि द फार्मा की बात करें तो फार्मा में आप देखो फार्मा की डिमांड जो है वो कभी कम नहीं होने वाली. जितनी ज्यादा गर्मी पड़ेगी उतनी ज्यादा फार्मा की डिमांड आने वाली. तो इस हिसाब से हम एक इंडस्ट्री से आज हम बात करें पब्लिक सेक्टर की बात आते हैं. पब्लिक सेक्टर में एक कुछ ऐसी आइटम वो है अपने प्रोडक्ट है जो कि मोनोपोली वाले. आज हम बात करें पेट्रोकेमिकल ओएमसी की बात करें तो ओएमसी ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो है उसमें डिमांड तो हमेशा रहनी है. पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की डिमांड तो कभी खत्म होनी नहीं. अभी हम बात कर रहे हैं कि पिछले 2 साल से एक और सेगमेंट आया है ईवी का, बट ईवी कहीं ना कहीं सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है. आज हम जब देखते हैं कि ईवी के लिए जितनी टॉक हुई है उतना उसका रिजल्ट ग्राउंड पर नहीं दिखाई दे. तो हमें इस पॉइंट ऑफ व्यू देखना पड़ेगा कि अभी क्या ईवी के आने से जो पेट्रोल ऑपरेटेड या डीजल ऑपरेटेड व्हीकल है क्या वो खत्म होने वाले हैं. मेरा आंसर है नो. ये कंटिन्यू रहेंगे और कंटिन्यू रहेंगे इसका मतलब अभी इंडस्ट्री पे कोई इफेक्ट नहीं आता. देन कमिंग टू कंपनी एनालिसिस, involves evaluating the companies to discuss its financial health, performance and prospects. कोई कंपनी ऐसी तो नहीं है जिसकी ग्रोथ डीग्रोथ में कन्वर्ट हो रही है, राइट. तो हमें प्रोस्पेक्ट्स क्या है फ्यूचर. अगर कंपनी ग्रो कर रही है आईटी कंपनी में आज की डेट में या किसी पर्टिकुलर में बात करें इन्फोसिस की बात करें हमें कहीं ग्रोथ ही नहीं दिखाई दे रही है. 1-2% की कोई ग्रोथ आती तो ये ग्रोथ नहीं है, ये एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया. आज हम बात कर रहे हैं जाकर के किसी कंज्यूमर प्रोडक्ट की बात करें तो उसका भी 7-8% की उसमें ग्रोथ आ रही है. बट आज हम बात करें कोल की बात करें, लेट्स से हम कोल इंडिया की बात करें स्टॉक स्पेसिफिक. कोल इंडिया में इस समय आप देखोगे इतनी गर्मी पड़ रही है खासतौर से नॉर्थ इंडिया में, और जो हमारा पावर कंजम्पशन की डिमांड है वो बहुत ज्यादा है. अभी दिल्ली में मैं देख रहा था कि पिछले कुछ दिनों में हफ्ते 10 दिन से देख रहा हूँ पावर कट स्टार्ट हो गया. कहीं 1 घंटे के लिए लाइट जा रही है, कहीं आधे घंटे के लिए लाइट पावर कट हो, बिकॉज डिमांड मीट आउट नहीं हो पा रही है. कुछ हो सकता है लोकल गवर्नमेंट की प्रॉब्लम हो, बट ऑन एन एवरेज हम देखेंगे तो इंडस्ट्री में ये देखना बहुत जरूरी है कि पर्टिकुलर जो कंपनी है या इंडस्ट्री है वो उसकी ग्रोथ और उसकी डिमांड प्रोडक्ट की डिमांड कैसी है. देन इकोनॉमिक एनालिसिस के पैरामीटर्स, जीडीपी ग्रोथ. अगर हम बात करें कंपोनेंट जीडीपी ग्रोथ हम बात करते हैं तो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ तो वन ऑफ द बेस्ट है. इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं तो पिछले 2 साल से इंटरेस्ट रेट हमारे यहाँ बिल्कुल स्टैग्नेंट है, आज वर्ल्ड से कंपेरेबल है. आज यूएस की हम बात करते हैं तो यूएस में इंटरेस्ट रेट कितना हो गया है किसी को पता है. इसके लिए है जो इंटरेस्ट रेट 0.0 से लेकर 0.25 चलता था यूएस में, जब मैं बात कर रहा हूँ इंटरेस्ट रेट बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट. जैसे हमारे यहाँ आरबीआई है, आरबीआई ने रेपो रेट रखा वो 6% का है, राइट. 6% भी हमारे यहाँ देखा जाए तो बड़ा रीजनेबल रेट है. कोविड के बाद ये 4% आया था, अब उससे बढ़कर 6% हो गया. बट उससे पहले देखा जाए तो 7%, 8%, 9%, 10% रहता था. तो 6% भी देखा जाए ज्यादा नहीं है. यूएस की हम अगर बात करें तो यूएस में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 0 to 0.25% चलता था वो आज 5.5% है, 5.5%. तो इसका मतलब आप देख लो कि आपके यहाँ मतलब आपके लेवल पर आगे डेवलप्ड कंट्री का रेट ऑफ इंटरेस्ट एक अंडर डेवलप्ड कंट्री वो डेवलपिंग कंट्री के इस पोजीशन पे आ गए. सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू हम एनवायरनमेंट की जब बात कर रहे हैं तो इंटरेस्ट रेट इज क्वाइट कॉम्पिटिटिव इन इंडिया. देन कमिंग टू इन्फ्लेशन रेट, again inflation rate is under 5, near 5. So that is US में भी अभी almost 5% चला गया था. Now it is around 3.5%. Foreign exchange rate more or less
मैनेजेबल रेट चल रहे हैं, 83 के आसपास मूव कर रहा है डॉलर हमारा। देन गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसी, अभी हम देखेंगे गवर्नमेंट इज वर्किंग थैंक्स टू कैन कह सकते हैं ना कि पब्लिक सेक्टर के जो शेयर्स या जो आरबीआई ने अभी डिविडेंड दिया है 2.11 लाख करोड़ का, तो इससे क्या है कि दिस हेल्प्स गवर्नमेंट टू मेंटेन द फिजिकल फिजिकल पॉलिसी। तो आज हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है वो हमारा 5% के आसपास का जो टारगेट है, कमिंग ईयर में 4.2 या 4.3% का टारगेट है, वो अचीव करने को गवर्नमेंट। तो ऑल पैरामीटर को हम देखेंगे जाकर के, तो दीज आर ए रीजनेबल एंड विद इन लिमिट्स काइंड ऑफ अप्रोच। मॉनेटरी पॉलिसी, सेंट्रल बैंक एक्शंस, सेंट्रल बैंक हमारे प्रोएक्टिव है, as and when required, whether it is a COVID time or the time later on, central bank is taking action. अगर उनको जैसे कोविड के टाइम पे देखा जाए तो उन्होंने एडिशनल लिक्विडिटी दी मार्केट में या रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एक्ट किया है। सो दैट मीन्स नाउ मोर और लेस सेंट्रल गवर्नमेंट इज वर्किंग इन टैंडम विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। सुमित, यू आर देयर? यस सर, यस सर, यस सर। बीच बीच में बोलते रहा करो, लगता है कि कोई जी है जी नहीं यहाँ जी, पर। मैं सुन रहा था आपकी सर। अच्छा, okay. Now coming to the phases. Industry analysis, industry phases, innovation, expansion and stagnation and declining. इंडस्ट्री के बारे में देखें, बहुत इनोवेशन किया, एक्सपेंशन भी किया, अब स्टैग्नेशन और डिक्लाइनिंग स्टेज की पोजीशन आ रही है आगे। Importance: provide a deeper understanding of a company's financial prospects, identify potential investment opportunities based on expected returns. तो एक्सपेक्टेड रिटर्न की हम बात करें, हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं मार्केट, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो डेट हो, चाहे वो बैंक का एफडीआर हो। तो आज की डेट में जब एक एक्सपेक्टेड रिटर्न की हम जब बात करते हैं तो इक्विटी मार्केट ही दिखाई देता है जहां पर हम वी कैन एक्सपेक्ट a good return of 15 to 24%। आजकल तो बहुत अच्छा बुल मार्केट चल रहा है, तो यहाँ तो रिटर्न 50-60%, 100% तक के भी आ रहे हैं। तो बट इक्विटी मार्केट द ओनली मार्केट where we can expect a good return. Then coming to company analysis. There are two kind of analysis of a company. One is the qualitative company analysis and then the quantitative analysis. Quantitative analysis involves the use of financial ratios and data from the company's financial statement. ये इन सब चीजों से हम लोग काफी हद तक हम लोग कन्वर्जेंट है इससे। हम बात करते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। Qualitative analysis is based on the quality of the factors such as management. How is the management of the company in which you want to control? हम बात करते हैं पेनी स्टॉक्स की बात करते हैं। पेनी स्टॉक का मैनेजमेंट हम सबको पता है, हो सकता है वो शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा प्रॉफिट देके जाए, बट लॉन्ग टर्म में इट कैन नॉट रिवार्ड द। एक मैनेजमेंट की हम बात करते हैं, टाटा ग्रुप हमारा एक मैनेजमेंट है टाटा का, जो कहते हैं बाय एंड लार्ज आप कुछ मत देखो, वो मैनेजमेंट बाई हार्ड, बाई वर्किंग, बाई ट्रांसपेरेंसी सब कुछ बनाकर अच्छा होगा। तो यू कैन एनी टाइम इन्वेस्ट इन टाटा ग्रुप स्टॉक। मैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, दिस आई एम जस्ट रिकमेंडिंग बिकॉज ऑफ द मैनेजमेंट। देन ब्रांड, प्रोडक्ट्स, पेटेंट्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। मैं एक बात आपको बता दूं, इन्वेस्टमेंट का आप जिस कंपनी में जहां आपको दिखाई दे कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे कोई इशू आ रहा है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे कोई क्वेश्चन मार्क लग रहा है, या कॉर्पोरेट गवर्नेंस की वजह से कहीं ना कहीं कंपनी की री रेटिंग हो रही है, उस स्टॉक से आप इमीडिएटली निकल जाओ, चाहे आपको लॉस आ रहा हो और यू आर गेटिंग ए गुड प्रॉफिट। इमीडिएटली गेट आउट फ्रॉम दैट स्टॉक। कि आज की डेट में मार्केट इज नॉट लाइकिंग एनी कंपनी, एनी स्टॉक वेयर द क्वेश्चन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस कम्स। और किसी भी अगर हम स्टॉक को देखेंगे, गिरने से पहले कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक ऐसा है, एक इशू है जिसकी वजह से आपको पहले ट्रेंड पता लग जाता है। जैसे आता है उसका भी आप इसकी भी बात करेंगे, पेटीएम की भी बात करेंगे, तो जैसे ही कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू आया या आरबीआई ने उस पर क्वेश्चन मार्क किया, तो उस दिन शेयर इतना नहीं गिरा था, उसके बाद से गिरना स्टार्ट हुआ। तो आज वो 700-800 रुपए पे भी चल रहा था, वहां से सीधा 350-300 रुपए रहेगा, 315 रुपए तक भी आया।
तो मेरा मतलब कहने का ये है, immediately get out that stock when the question of corporate governance comes. Then comes to financial analysis ratios. We all know as a chartered accountant, earning per share measurement is the measurement of the profitability, price to earning, measurement of the valuation. Can anybody answer higher the price P ratio? We like it or not? Higher the P ratio. No, sir. Reply from no. नो बोलिए, रिप्लाई से मजा नहीं आता है, बोलने से इंटरेक्शन ज्यादा अच्छा रहता है. ओके, देन कम्स टू हमारा क्या है कि दैट अर्निंग्स डिवाइडेड बाय द मार्केट प्राइस ऑफ ए स्टॉक. सर आई एम अलाउड टू अनम्यूट, अदरवाइज वो बीच में डिस्टरबेंस हो रही थी तो मैंने लॉक कर दी थी मीटिंग. अच्छा अच्छा. नाउ आई विल अलाउड. Allow to everybody, like for the Yes, interest, if yes, they have yes, any allowed, sir. query, we can discuss. Or then price to earning ratio, basically the market price of a stock divided by the earning per share, that comes to price. अगर market price किसी stock का बहुत ज्यादा है और earning कम है, तो P ratio will be very high, which is not good by and large. So where we are saying the market price of a stock is less means and earning potential is very high or earning is very high, then P ratio will be less. In case of public sector, all public sector stocks, आज भी PSEs public sector stocks is available at under 10 of P. कोई भी स्टॉक आज अवेलेबल नहीं है और मेरा ऐसा मानना है, आई एम वेरी फैंसी ऑफ पब्लिक स्टॉक सिंस 2000 post COVID, and I tell you I am regularly recommending that stocks. और आज भी PSEs की जो stocks है, they have potential like anything, huge potential. अभी पब्लिक सेक्टर में 2 से 3 गुना पोटेंशियल है, 4 गुना पोटेंशियल है अभी मान. Then debt to equity ratio, higher the debt, it is good or bad for the company? गुड और बैड सर दोनों ही चलेंगे, डिपेंडिंग कि उनकी रिटर्न क्या है. उनकी रिटर्न क्या, if they are getting a return better than post tax return better than the interest, then it is good. But बहुत ज्यादा ओवर लेवरेज कंपनी unless वो सपोर्ट नहीं कर रही है फंडामेंटल्स को, so that drags the stock down. So एक कहते हैं रीजनेबल, एक डिपेंडिंग ऑन योर बिजनेस मॉडल, it should be and near or less than 1, then it is good, depending on the business model. Okay, then comes to projected earning growth ratio, measures of valuation, taking earnings growth on account. आपका जो CAGR वगैरह है वो क्या चल रहा है, क्या एनुअल ग्रोथ क्या है, CAGR सेल्स का क्या है, प्रॉफिट का क्या है, तो उस पर आपको डिपेंड करे. अच्छा अगर कंस्टेंटली अगर ग्रोथ दे रही है तो दैट वुड बी अ गुड स्टॉक. देन प्राइस टू बुक, अगर हम पब्लिक सेक्टर के स्टॉक देखें आज भी बुक वैल्यू के आसपास मिल रहे हैं, या कुछ स्टॉक तो ऐसे जो बुक वैल्यू से नीचे मिल रहे हैं. प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो वही वैल्यूएशन 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स हो जाता है. 100 रुपये उसकी बुक वैल्यू और स्टॉक 500 रुपये में अवेलेबल चल रहा है. पब्लिक सेक्टर में आज मैं बात करूं तो आज शायद सेल का या IOC का स्टॉक 170 180 का उसका बुक वैल्यू है, उससे नीचे चल रहा है. सो दैट काइंड ऑफ वैल्यूएशन पब्लिक सेक्टर आर सीइंग. देन रिटर्न ऑन इक्विटी, profit measures that can be generated with the invested money. So then in that case आपका जो earning potential है वो क्या है, आपकी जो equity है वो equity पर return जो है that should be better than the interest rate, then only you are you will be like, otherwise you won't be. Then कहते हैं application of fundamental analysis in equity research. What are the applications? Financial highlights. हमारे पास जो एनुअल रिपोर्ट्स आती है उसमें हम देखते हैं कि फाइनेंशियल हाइलाइट्स, आप उसको अगर ढंग से गो थ्रू करें तो बहुत सारी चीजें आपको वहां से मिल जाती हैं फाइनेंशियल हाइलाइट्स में, कि व्हाट इज द कंपनी परफॉर्मेंस, और वो कंपनी का एक तरह से एक समरी भी आप देख लेंगे तो आपको आइडिया लगता है कि हाउ द कंपनी हैज डन इन लास्ट ईयर. Then management discussion and analysis, and going further in the report you find what management is expecting,
and what is their guidance, what difficulties they got. So these all aspects you must read. Then 10-year financial highlights. 10 years or 5 years or at least you should go through trend क्या है, क्या कंपनी ग्रोथ में चल रही है या डिक्लाइनिंग है प्रॉफिटेबिलिटी या उसकी रेवेन्यू डिक्लाइनिंग है, तो ये सारे फैक्टर्स आपको देखने को। देन कम टू डायरेक्टर्स है, बहुत सारी चीजें डायरेक्टर्स रिपोर्ट में डिस्क्लोज होती है, जिसको आई थिंक वी शुड स्टडी, एंड उसके बेस पर कभी कभी बहुत छोटी छोटी चीजें आपको मिल जाती हैं, क्योंकि इसको आप फर्दर स्टडी करते हो, दैट कुड बी ए गुड एडवांटेज। Then report on corporate governance. I have already discussed this very necessary. The corporate governance से आज तक कुछ छिड़कानी नहीं रहनी चाहिए। इस मतलब corporate governance के जहाँ इशू आए वहाँ पर अपनी जो ना अंतरात्मा से पूछना, भैया इसको हमने रखना है या बंद करना, अब स्टॉक को डिस्पोज ऑफ करना। नोटिस वगैरह स्टॉक एक्सचेंज में आते रहते हैं, उसको डेली अगर आप डेली या पीरियडिकली आप इसको रिव्यू करेंगे तो बहुत सारे आपको यहाँ से कंपनी की एक्टिविटी के बारे में पता लग जाए। अनेक्शंस उसके रिपोर्ट में कोई है उसको स्टडी करना चाहिए। देन अंडरस्टैंडिंग द स्टॉक वैल्यूएशन, intrinsic value, determining the true value of a stock using fundamental analysis. Then investment decision helps investor assess whether they are overpaying for a stock or the stock is cheaper. I think we have already discussed this. Process, understand the company. कंपनी के बारे में, मैंने कंपनी जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उस कंपनी का वो पहले समझना। यही नहीं है कि किसी ने बोल दिया और उसी के बेस पर आप उसमें इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं। यूज फाइनेंशियल रेशियो फॉर इनिशियल स्क्रीनिंग। अब आप देखते हैं जैसे कि आपने निकाला है कि जो फाइनेंशियल रेशियोज है वो आपके पैरामीटर्स में फिट बैठ रहे हैं। आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जिसमें आप वो सॉर्टिंग मेथड डाल देंगे तो आपके पास कुछ कंपनी स्क्रीनिंग होकर आ जाएगी। देन यू कैन फर्दर स्टडी दोज कंपनीज। Closely study company's financial report, already discussed in detail. Find competitors and study them. Competitor कौन है कंपनी का, तो उस पर आपको थोड़ा, जैसे आपको रिलायंस के प्रोडक्ट है उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, या कॉम्पिटिटर है भी तो बहुत छोटे कॉम्पिटिटर है। आज हम बात करें टेलीकॉम सेक्टर की बात करें तो टेलीकॉम सेक्टर में 3 ही प्लेयर है। जियो इज कॉम्पिटिंग विद ऑल, बट लॉन्ग टर्म में क्या ये कॉम्पिटिशन चल पाएगा क्या? कंपटीशन में क्या हो रहा है आज की डेट में, हम मान के चलिए कि 3 प्लेयर जो है अपना जियो, एयरटेल एंड वोडाफोन, इन तीनों ने रहना है। जब इन तीनों ने रहना है तो कंपटीटर कितना भी कंपटीशन कर लो, आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं कंपटीटर भी एक पर्टिकुलर मार्केट शेयर लेने के बाद वो भी चाहेगा कि हमारा रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े। अभी ये कहीं ना कहीं कहते हैं ना क्रॉस सब्सिडाइजेशन का काम चल रहा है। एज पर द जियो इज कंसर्न, जियो का जो प्रॉफिट आ रहा है वो एक्चुअल है, जेन्युइन है कि नहीं है, इस क्वेश्चन मार्क। बिकॉज सारी रिलायंस ग्रुप में सारी कंपनी जो है ना वो सब एक दूसरे से 150 कंपनी और कंपनी आर द सब्सिडीज कंपनी, 162 कितनी कंपनीज थी। देन चेक कंपनीज डेट एंड कंपेयर विद द राइवल्स। डेट इक्विटी डेट रेशियो मैंने डिस्कस ऑलरेडी किया है, तो इंडस्ट्री वाइज देखिए कि डेट की क्या पोजीशन है। इफ द डेट इज हायर देन आई थिंक वी शुड अवॉइड दैट कंपनी। एनालाइज कंपनीज फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, कंपनी ग्रोथ कर रही है, कंपनी का मैनेजमेंट बेटर है, आए दिन झगड़े हो रहे हैं, कोई रिजाइन करके जा रहा है, तो ऐसी कंपनी से बचना चाहिए। बेनिफिट ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस, फाइनेंशियल हेल्थ, come to understand the financial health of a company. Use of financial data and accounting ratios to assess a company's financial health, helping investors make informed decisions. तो जब तक आपके फाइनेंशियल हेल्थ आपके सामने नहीं होगी, कंपनी के बारे में नहीं पता होगा, तो आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे। डिसीजन नहीं ले पाएंगे तो इसके लिए मतलब ये हुआ कि आपको कंपनी के जो एनुअल रिपोर्ट्स है या क्वार्टरली जो रिजल्ट्स है उसको पीरियडिकली आपको रिव्यू करते रहना चाहिए। लॉन्ग टर्म फंडामेंटल एनालिसिस particularly useful for long-term investment approaches, providing a complete view of company's financial aspects. तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस की सबसे ज्यादा जरूरत है, और एंड दीज शुड बी रेगुलरली रिव्यूड।
आपको वो ये नहीं कि एक बार आपने देख ली, कि हर क्वार्टर एंड आफ्टर रिजल्ट उसके रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, उसकी गाइडेंस वगैरह कैसे। एंड आई थिंक मेरा जो फंडामेंटल एनालिसिस रिलेटेड है वो सारे क्वेश्चंस मैं उसको कंप्लीट कर चुका हूँ। एंड एक मैं केस स्टडी लेना चाहूंगा सुमित भाई फॉर जेपी पावर। इज दैट ओके विद यू? सुमित, मोनिका, Yes, yes, sir. मोनिका जी, अच्छा ये बताइए कि आप लोगों ने कभी जेपी पावर में इन्वेस्ट किया है? मेरी कॉल आई है, मेरी कॉल के ऊपर, या हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको कोई फॉलो करता है? No, sir. नो। एक ये स्टॉक है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे हम देखते हैं अभी अप्रैल में मैं गया था भीलवाड़ा ब्रांच में गया था अपना प्रेजेंटेशन देने के लिए। तो एक उन्होंने मेरा वीडियो रिकॉर्ड किया था वोडाफोन आइडिया पर, और उसी समय उसका उसी दिन उसका आईपीओ सॉरी एफपीओ ओपन हुआ था। तो क्वेश्चन ये था कि 11 रुपए में उसको अप्लाई किया जाए कि नहीं किया जाए, राइट। सो अगर हम केवल फाइनेंशियल्स पे जाते हैं कंपनी की, तो हमें ये लगता है कि इट इज नॉट वर्थ टू इन्वेस्ट। अगर हम उसको डिटेल फाइनेंस फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, सो बेस्ड ऑन दैट आई सेड ओके वन मस्ट गो फॉर दिस। रीजन वाज वेरी क्लियर। अब बिसाइड फाइनेंशियल दो द फाइनेंशियल इज आल्सो इम्प्रूविंग। फाइनेंशियल की मैं एक बात करूं तो वोडाफोन के केस में जो उनका एआरपीओ था, एआरपीओ बेसिकली एवरेज एवरेज रिसीट पर यूजर और एवरेज रेंटल पर यूजर, राइट। तो पहले 107 था, वो अब 144 हो गया है। और आने वाले टाइम में मैं ऐसा मानता हूं कि वो 200 रुपए तक बड़ा आसानी से जाने वाला है। इस इलेक्शन के बाद आप देखोगे तो टेलीकॉम प्राइस में कहीं ना कहीं प्राइस अपवर्ड रिवाइज होने का। प्लस मैनेजमेंट के साथ एक प्रॉब्लम थी, उसमें प्रॉब्लम क्या थी कि दे वर नॉट एबल टू रेज द फंड्स। आज मैनेजमेंट इज एबल टू रेज द फंड्स, और इनफैक्ट अभी मैं बात कर रहा हूँ उस एफपीओ से पहले की बात कर रहा हूँ। तो मैनेजमेंट ने फंड रेज किया, फंड रेज के लिए उससे पहले मैनेजमेंट ने एंकर इन्वेस्टर से पैसा उठाया, और उससे भी पहले मैनेजमेंट ने खुद पैसा डाला। तो इससे क्या है कि पैसा आने की उस कंपनी में, कंपनी को क्या चाहिए, पैसा चाहिए था, तो पैसा कंपनी में आना स्टार्ट हो गया। तो ये सारे पैरामीटर देखकर, प्लस गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है, गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि मार्केट में केवल 2 प्लेयर रहे। सो इसलिए गवर्नमेंट तीसरे प्लेयर को भी रखना चाहती है, क्योंकि 2 प्लेयर रहने का तो अपने आपस में साठगांठ करेंगे और रेट को पब्लिक जब चाहे तब रेट को बढ़ा दें। तो ये सारे फैक्टर थे, मैंने वहां पर रिकमेंड किया उस स्टॉक को कि ये वन मस्ट अप्लाई, एंड माय इनिशियल टारगेट इज 18 to 20 रुपीज ऑफ वोडाफोन। आज हम देख रहे हैं 16 रुपए क्रॉस किया है। सो बेसिकली और भी पैरामीटर्स होते हैं, वो मैं ये कहना चाहता हूँ। अब मैं केस स्टडी लेता हूँ जेपी पावर की। जेपी पावर के शेयर को मैंने आइडेंटिफाई किया अक्टूबर 2019 में। उस समय इस स्टॉक का प्राइस था 1 रुपए 10 पैसे, इसका फेस वैल्यू था 10 रुपीज। जब मैंने स्टॉक अपना बाइंग करने के बाद जब मैं आपस में अपने ग्रुप में डिस्कस करता था, तो सारे लोग बोलते थे, मेरा जो सर्कल है कुछ बहुत क्लोज है, 4-5 लोग हैं जो कि अपना इन्वेस्टमेंट से काफी अच्छा उनका पोर्टफोलियो भी है, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है, प्लस वो पोजिशनल भी बहुत लेते हैं। तो मोरलेस सर ये पेनी स्टॉक है, ये है वो है। तो मैंने उनसे पूछा पेनी स्टॉक की डेफिनेशन क्या है, तो आई थिंक दे वर नॉट एबल टू टेल। बट मैं आप सबसे भी कहना चाहूंगा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पेनी स्टॉक, व्हिच आर द पेनी स्टॉक्स? कोई कैन एनीबॉडी एक्सप्लेन ऑन दिस? Which is not, which is less than the small stock. I mean, there are 3 classifications: large cap, mid cap, and small cap. Okay. The classification below these small caps are all penny stocks. Classification of? The classification below these small cap stocks is all penny stocks.
सर एक शेयर की प्राइस है, फेस वैल्यू है जो वो 10 रुपए है, हम्म। राइट, और वो आपको 3 रुपए में मिल रहा है। उसकी ठीक है, मार्केट वैल्यू देखनी पड़ेगी साहब, मार्केट वैल्यू क्या है, मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, उसके अकॉर्डिंगली होता है। अगर पूरी कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन 500 सर करोड़ है, 1000 10 करोड़ है, करोड़ से कम। comes under स्मॉल कैप स्टॉक, पेनी अच्छा, स्टॉक। नहीं 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 सर, मैं थोड़ा सा यहाँ पर डिफर करूंगा। वो पेनी स्टॉक है सिर्फ बिकॉज उसका प्राइस कम है, वो पेनी स्टॉक नहीं हो सकता है। वो उसका सर कैपिटलाइजेशन से तो वो माइक्रो कैप हुआ। माइक्रो कैप हुआ। मैं आपको बताता हूँ, पेनी स्टॉक का मतलब जो है कि एक ऐसा स्टॉक जिसके मैनेजमेंट का अता पता नहीं है, एक ऐसा स्टॉक जिसकी ना तो कंपनी, जो कंपनी ना तो वो अपने फाइनेंशियल स्टॉक एक्सचेंज में फाइल करती है, मतलब वो जो हाईली रिस्क पे बैठी हुई है, किसी का मैनेजमेंट नहीं पता है। अगर उसका कॉर्पोरेट ऑफिस या रजिस्टर्ड ऑफिस जाओगे तो पता लगेगा कि वहां पर लॉक लगे हुए, फिर भी उसकी टर्नओवर आ रही है, राइट। और टर्नओवर कैसे आ रही है हम सबको पता है, कोई बुकिश एंट्री आ रही है या टर्नओवर दिखाने के लिए मैनिपुलेशन है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि 2000 था पेनी स्टॉक। अब मैं बात करता हूँ जेपी पावर की, बात करता हूँ जेपी पावर में मैंने क्या देखा, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, तो एक आपको आइडिया लगे कि why it was not a penny stock and why it is not a penny stock and it became a multi bagger। जब मैंने इसको 1 रुपए 10 पैसे में इसको जब खरीदा था मैंने, और बहुत अच्छी क्वांटिटी में खरीदा था, तो मेरे पास इसके खरीदने के कुछ रीजन थे। ये नहीं कि बहुत सस्ता मिल रहा है इसलिए खरीदे थे। उस समय आप अगर जाएंगे अपने स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर जाएंगे तो देखेंगे 29 अक्टूबर 2019 के आसपास उन्होंने एक फाइलिंग किया स्टॉक एक्सचेंज में, जिसमें ये लिखा था कि उन्होंने जो 700 मिलियन सिंगापुर डॉलर आई थिंक जो उन्होंने रेज किया था, वो फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, FCCBs, वो दैट वाज कन्वर्टेड एट ₹12 पर शेयर। मतलब उन्होंने अपने डेट को 12 रुपए में इक्विटी में कन्वर्ट किया, और प्राइस चल रहा है 1 रुपए 10 पैसे, 1 रुपए 20 पैसे, 1 रुपए से 1.5 2 रुपए के बीच में प्राइस चल रहा है, और कन्वर्जन हो रहा है 12 रुपए पर। ओके, वहां से मैंने एक्यूमुलेशन स्टार्ट किया, और जनवरी फरवरी 2020 में आकर के मैंने देखा कि ये कंपनी जो थी, साथ साथ एक प्रेशर और भी था इसके साथ साथ, कंपनी वाई द प्राइस वाज डाउन, दिस कंपनी वाज अबाउट टू, कुछ कंफ्लिक्ट चल रहा था आईसीआईसीआई बैंक और मैनेजमेंट के बीच में। आईसीआईसीआई बैंक बाय द लीड मैनेजर वो कंपनी को रिकवरी के लिए आईवीसी में ले जाना चाह रहे थे। तो कंपनी का एक सेटलमेंट चल रहा था, उस सेटलमेंट में उन्होंने सेटलमेंट किया फरवरी में, जिसमें उन्होंने जो लोन्स था उस लोन्स को कन्वर्ट किया इक्विटी में एट द रेट ऑफ ₹10। सो सेकंड मेरे वो कंफर्मेशन आ गया, भैया ये 1 रुपए वाला शेयर तो नहीं है कम से कम। और उस समय लगभग लगभग 3,500 करोड़ का जो इंटरेस्ट था, जो एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट था, उसको उन्होंने वेवर किया। तो दैट वाज थर्ड प्लस पॉइंट, राइट। कंपनी इंसॉल्वेंसी से बाहर आ गई, जो ले जाने की बात कर रही थी कंपनी बाहर आई, उन्होंने सेटलमेंट किया, इक्विटी उन्होंने परचेज की 10 रुपए में। तो सर ये जो न्यूज है ना, अच्छा प्लस इसके अलावा उससे पहले एक स्टडी मैंने और की थी कि कंपनी की वर्किंग क्या है। जेपी पावर का जो टर्नओवर था वो था रफली 800 करोड़ रुपीज पर क्वार्टर। अगर हम बात करें कि 3,000 करोड़ से लेकर के 4,000 करोड़ का जिस कंपनी का रेवेन्यू हो, ये एंड दैट रेवेन्यू वाज नॉट थ्रू बुक एंट्री, उनके स्टेट गवर्नमेंट के साथ पावर परचेज एग्रीमेंट थे। फिर मैंने और अंदर जब डीप में गया था, मैंने उसका एसेट बेस देखा। एसेट बेस में उनके पास 2220 मेगावाट का पावर जनरेशन है, जिसमें एक हाइड्रो है और कोल बेस्ड है, प्लस एक उनके पास कोल माइन है जो कि कैप्टिव कंजम्पशन के लिए बना हुआ है। अगर एक कंपनी के पास इतना कुछ है, इसके बाद मैंने और क्या देखा इसमें जाकर के कि मैनेजमेंट की क्या पोजीशन है। तो सारे बोलेंगे मैनेजमेंट गलत है, ठीक है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनकी एक ग्रुप कंपनी है जेपी इंफ्राटेक, वो इंसॉल्वेंसी में गई और वो कंपनी उनसे निकल गई। निकल के मीन्स किसी ने उसको परचेज अपना कौन आईबीसी में सुरक्षा रियल्टी वालों ने उसको टेक ओवर किया।
बट कंपनी की जो इंटेंशन थी, जो मैनेजमेंट की इंटेंशन थी, व्हाट वाज दैट इंटेंशन? मैनेजमेंट ने खासतौर से मैं आई विल अप्रिशिएट दैट मैनेजमेंट. आई हैवंट सीन दिस काइंड ऑफ मैनेजमेंट इन इंडिया. उन्होंने अपनी दूसरी ग्रुप कंपनी के जो जेपी एसोसिएट की हम बात करें, उसके एसेट्स बेच करके उन्होंने लोन रिपे किया है. आपके सारा पब्लिक डोमेन में है. उन्होंने कितना, उनके पास सीमेंट का बिजनेस था, सारा बिजनेस भेजा, अपने लोन्स को कम किया. दैट मीन्स मैनेजमेंट वाज सिंसियर और मैनेजमेंट वांटेड टू रिड्यूस द लोन्स एंड पे ऑफ. तो जब इतना सब कुछ देखने के बाद आई हैड गिवन अ टारगेट ऑफ 10 to 12 rupees ऑफ दैट स्टॉक. दो आई फेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस. लोगों को होता ना कि प्रोवोक कर रहे हैं आपको कि यार ये क्या रिकमेंड कर रहे हो. मैंने कि वैल्यू सीना है. एंड आई टेल यू, I think by 2022, this stock went up to 12 rupees, 11 rupees some पैसा. So 1 रुपए 10 पैसे वाला. बाकी जो लॉकडाउन का टाइम था उस समय दिस मैंने अगेन May 20 में इसको रिकमेंड किया. तब तक मैंने उसको पब्लिक को रिकमेंड नहीं किया था. दैट टाइम इट केम 75 पैसा. उस समय मैंने इसको रिकमेंड किया विद ए वैल्यू ऑफ 10 to 12 rupees प्राइस. वहां से ये शेयर 11 रुपए जाकर के 6 रुपए वापस आया. 6 रुपए से अगेन दिस शेयर वेंट टू 24 or 25. सो व्हाट आई वांट टू से कि अगर हम केवल फाइनेंशियल सी कंपनी के देखें तो वो कंपनी उसमें लॉस में थी. तो फाइनेंशियल अलोन इज नॉट रिप्रेजेंटिंग, विल नॉट सपोर्ट योर व्यू. आपको और भी जो वर्किंग है, जो मैं फंडामेंटल एनालिसिस की बात कर रहा हूँ, कि आप स्टॉक फाइलिंग भी देखिए, मैनेजमेंट की रिपोर्ट पढ़िए, मैनेजमेंट की कमेंट्री पढ़िए. अगर आप स्टॉक मार्केट में एक बहुत अच्छा पैसा बनाना चाहते हो, तो आपको ये सब मेहनत करनी पड़ेगी. आपको कहीं ना कहीं कंपनी के कहते चारों तरफ आपको ये देखना पड़ेगा कि चल क्या रहा है. तब जाकर आप कहीं इस कंपनी में पैसा बना सकते हो. अदरवाइज क्या होगा, 12 का लिया 15 में बेच दिया, 15 का लिया 18 में बेच दिया, 18 का लिया 12 रुपए आ गया. पैसा तब बनेगा जब आप उसमें डीपली इन्वॉल्व हो. मेरा मतलब कहने का ये है कि एनालाइज ऑल फंडामेंटल्स. नहीं, इसमें ये बताइए सर कि अगर ऐसा स्टॉक, पेनी स्टॉक आप आइडेंटिफाई कर भी लेते हैं तो हाँ. कितनी क्वांटिटी में लेना चाहिए? क्योंकि रिस्क तो रहते ही हैं, ग्रुप में एसोसिएटेड होते हैं, ग्रुप्स का लॉसेस होते हैं, तो आप कितनी हिम्मत करें, वो दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब हाउ मच वैल्यू. सर आपकी कैपेसिटी पर डिपेंड करेगा कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हो. रिस्क एपेटाइट. देखिए, मेरे से अगर पूछा जाए तो मैं अगर फ्राइडे में आज बात करूं, आज मैं बोलूंगा तो कहेगा यार आज आप बोल रहे हो. मैंने फ्राइडे को भी अपने कुछ ग्रुप में शेयर किया था कि मैंने आई बॉट दिस थिंग्स. फ्राइडे को पोजीशन ये थी, सबको ये लग रहा था कि पता नहीं इलेक्शन में क्या आएगा. अगर आप इस बात को देखो कि केवल इलेक्शन, पब्लिक सोशल मीडिया पे इलेक्शन नहीं लड़ा जाता है, राइट. मैं एक दिस बिकॉज दिस इज अगेन ए वे ऑफ एनालाइजिंग द फंडामेंटल्स. हो सकता है वो फंडामेंटल मेरा किसी कंपनी स्पेसिफिक ना हो. मेरा फंडामेंटल एनालिसिस थी भैया पूरा इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, जिस कंट्री में आप हो उस कंट्री के जो जनरल इलेक्शन हो रहे हैं उसको एनालाइज करना था. तो मेरे को जो एक 10 साल का काम, 10 साल का एक आपका रिपोर्ट कार्ड, उसके पीछे आपका एक जो संगठन है, क्या सोशल मीडिया पे इंफॉर्मेशन नेगेटिविटी फैला करके आप उसको अनडू कर दोगे? अल्टीमेटली बोर्ड तो उन्होंने देखा है ना, कि उन्होंने बेनिफिट देखा है. आज किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से बोलो कि उन्होंने क्या चेंज देखे हैं. हमारे कुछ व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ ऐसे ही 5% लोग हैं जो पूरे दिन नेगेटिव कर देते हैं. तो उससे क्या है, आप पैटर्न को चेंज कर दोगे क्या? सो अकॉर्डिंगली आई बॉट वेरी हैवीली ऑन फ्राइडे. तो ये फंडामेंटल आपको, हमें ये भी मेरे को पता था कि अगर मैं लेता हूँ बाय द वे, अगर कहीं ना कहीं देखिए एक नर्वसनेस तो थी, लेकिन एनालिसिस आपको कुछ और बोल रही है. तो आपको रिस्क लेनी पड़ेगी, और रिस्क कितनी लेनी है वो आपको अपने आप को एनालाइज करना पड़ेगा कि हम यहाँ पे 5% ओवर पोर्टफोलियो का 5% इन्वेस्ट करें या 10% इन्वेस्टमेंट करें या हम 5% इन्वेस्ट करें. तो दैट कॉल यू नीड टू टेक. एंड आई टेल यू, दैट टाइम I bought nearly 1 million share. मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ.
एक ये मेरे कुछ रिकमेंडेड स्टॉक्स हैं। आप लोग अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को आप अगर देखते हैं तो एक इंडेक्स है निफ्टी पीएसई। निफ्टी पीएसई को मैंने ट्रैक तो मैं अब इंडिविजुअली अपने लिए बहुत पहले से ट्रैक कर रहा हूँ मैं, और मे बी 2020 से कर रहा हूँ। लेकिन अभी जब मैंने इसको शेयरिंग करना स्टार्ट किया तो आप देखेंगे मेरे चैनल पर जाकर के 5 सितंबर 2023, 5 सितंबर 2023 को मैंने इसको यहाँ से ऑफिशियली रिकमेंड करना स्टार्ट किया। एंड दैट डे इट वाज 5768, राइट। उसको मैंने फिर यहाँ पे जो 6280 डाला है, ये बेसिकली दिवाली के दिन का है। यहाँ पे मैंने टारगेट दिया था सितंबर में, इट विल गो टू 7000 टू 7500 बाई मार्च। तो उस समय लोगों ने बड़ा ट्रोल किया, सब क्या पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है कि पब्लिक सेक्टर चलेगा। तो एक आपकी वो एक एनालिसिस टेक्निक है कि आप उसको कैसे करते हैं। एंड आई टेल यू विद इन 1 मंथ, October, mid-October or November, I think mid-October, it crossed, not only crossed 7,000, it crossed 7,500 also. Then I have revised its target to 9,000. और अभी मैंने अगर देखा जाए, इस पे मैंने अपडेट नहीं किया, पुरानी स्लाइड लगी हुई है ये, मैंने 12,500 का टारगेट दिया हुआ है, मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। और आज मैंने कुछ टारगेट शेयर किए हैं मैंने आज टारगेट, मैं अपना टारगेट बता देता हूँ। मोदी 3.0, मोदी 3.0 मतलब नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए टारगेट है। निफ्टी विल गो एनीवेयर 45,000 to 48,000. सेंसेक्स विल गो नियरली 1,50,000. बैंक निफ्टी विल गो नियरली 80,000 to 90,000. एंड पीएसई इन द निफ्टी पीएसई जो मैंने लास्ट 4th पोजीशन पर दिया हुआ है, दैट दिस आई एम सीइंग 24,000 to 25,000 इन मोदी 3.0, राइट। तो आप उससे आप लगा सकते हैं कि हाउ आवर इकोनॉमी इज गोइंग। आज हम बात करते हैं फंडामेंटल की, देश का जो एनवायरनमेंट है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है। जीएसटी की कलेक्शन मैं मानता हूं कि 2 लाख करोड़ पर महीने, मतलब 24 लाख करोड़ का जीएसटी का कलेक्शन होना है 2025 में। अभी शायद वो एवरेज 180 के आसपास होगा। एंड अगर मैं बात करूं जीडीपी ग्रोथ की बात करूं, तो कहीं ना कहीं 7 to 8% जीडीपी की ग्रोथ आनी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात मैं करूं, इससे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने वाला नहीं है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन आना है। दीज आर वेरी गुड फैक्टर्स। फिजिकल डेफिसिट की बात करूं, तो मैं मानता हूं कि फिजिकल डेफिसिट भी कहीं ना कहीं 5% का जो उनका टारगेट है, और आने वाले टाइम में 4% का टारगेट है, दे विल अचीव। अब मैं बात करता हूं कि पब्लिक सेक्टर की कैपिटलाइजेशन की बात करता हूं। गवर्नमेंट ने आप देखा है कि जब से कोविड आया था, उसका गवर्नमेंट ने किसी 20,000 करोड़, 25,000 करोड़, 50,000 करोड़ पैसा डाला ही है, तो कैपिटलाइजेशन बहुत अच्छा हुआ है। आज मैं बात करूंगी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूं पब्लिक सेक्टर का, तो पब्लिक सेक्टर का मार्केट कैपिटलाइजेशन आज की डेट में होगा 65 लाख करोड़ के आसपास होगा। इसको मैं आने वाले टाइम में कम से कम 65 से 150, मतलब 2.5 टाइम वैल्यूएशन देख रहा हूँ उसका। मेरे जो रिकमेंडेड शेयर्स हैं 10 शेयर, ये अपने दिवाली पर रिकमेंड किया था 12 नवंबर को। इसमें से 9 शेयर ऑलरेडी अपने पूरे साल के टारगेट अचीव कर चुके हैं, वहां से कहीं कुछ स्टॉक तो बहुत आगे निकल चुके हैं। ब्रिगेड इंटरप्राइज की बात करूं, 701 पर रिकमेंड किया था, 980 का टारगेट दिया था। आज इस 1300 कितना था, 13.5 पौने 1400 के आसपास था। आपको सर पहला फर्स्ट कॉलम क्लियर नहीं हो रहा, क्लियर कर देंगे? स्क्रीन में फर्स्ट कॉलम नहीं नजर आ रहा। सेक्टर रिकमेंडेड फर्स्ट कॉलम जो स्टॉक प्राइस, जो स्टॉक नेम है, दैट इज नॉट क्लियर स्क्रीन में। फर्स्ट कॉलम जो सेक्टर रिकमेंडेड टारगेट प्राइस वो सब आ रहा है क्लियर आपके शीट में, बट वो पहला नहीं आ रहा। क्लियर है सर, किसी कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो रहा होगा सिस्टम कटिंग हो रही है सर, पता नहीं क्यों मेरे में कटिंग आ रही है। अदरवाइज तो सर क्लियर है। सर लोग स्क्रीन आप क्लियर। स्क्रीन आप Clear. जी स्क्रीन टिल्ट कीजिए तो आपको दिखेगा सर। वो लैंडस्केप मोड पे लगा होगा ना, इस वजह से ये प्रॉब्लम है। अजय जी म्यूट हो गया आपका। ओके,
हेलो, नाउ Yes, यू आर yes. एबल टू सी इट। एक स्टॉक मैंने रिकमेंड किया था लास्ट ईयर, सुमित भाई को भी बताया था। सुमित, मैं चाहता हूँ कि उसकी स्टोरी आप ही बताओ तो ज्यादा अच्छा है। सुमित, क्या प्रॉफिट शेयर नहीं करना चाहते हो क्या? सुमित, आर यू लिसनिंग मी? मुझे लगता है किसी कॉल पे शायद बिजी हो गए हैं सुमित जी। अच्छा, एक शेयर मैंने रिकमेंड किया था, रेमंड रेमंड का शेयर रिकमेंड किया था। आई थिंक दैट वाज इन 2021, और 20 में मैंने लिया भी था 250-60 रुपए पर, और बाद में मैंने 400 रुपए के आसपास रिकमेंड भी किया है ग्रुप में। और टारगेट काफी अच्छा टारगेट दिया था, वो 2250 रुपए तक गया है। सुमित सुमित को भी खरीदवाए थे। आई थिंक इस टाइप के एक पीरामल फार्मा जो है, ये 118 पर रिकमेंड किया था, यहाँ पे 180 का टारगेट दिया है। ये आपको अब दिखाई दे रहा है नेम क्या है भाई साहब? हाँ जी, दिखाई दे रहा है, दिखाई अब दिखाई दे रहा अच्छा अच्छा, तो ब्रिगेड इंटरप्राइज है जो कि है। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक रियल एस्टेट की कंपनी है। 701 रुपए पे रिकमेंड किया था, 980 इस समय, आज वो 1384 रुपए का रेट लगाया। सेंचुरी टेक्सटाइल 2250 रुपए तक जा चुका है। कोल इंडिया 323 से 440, और 15 और 20, 20.5 रुपए डिविडेंड भी दे चुका है। आज 520 रुपए गया है ये। देन इंडियन बैंक, माई ऑल टाइम फेवरेट। दिस स्टॉक आई बॉट अराउंड 2020, 45-50 रुपए में रिकमेंड किया है। 600 रुपए, 630 रुपए गया आज ये, और मैं इसका रेट 1000 रुपए दिख रहा हूँ इसका रेट। जेकी लक्ष्मी सीमेंट 770 रुपए, बहुत पहले 400 रुपए में रिकमेंड किया था। 980 का टारगेट ये पूरा करके थोड़ा नीचे आया है। अगेन आई विल से इज अ गुड बाय। जियो फाइनेंशियल सर्विस 222 पर रिकमेंड किया था, 300, 400 रुपए, ऑलमोस्ट 400 रुपए जा चुका है, 350 के आसपास चल रहा है। पीरामल फार्मा, आई थिंक वेरी सुन इट विल टच 180 रुपीज। पावर फाइनेंस, इसकी तो स्टोरी बड़ी न्यारी है, 288 से 380, आज 560 रुपए में बेचा है, 557 रुपए में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया 88 से 119 का टारगेट दिया, बाद में रिवाइज करके 149 दिया था, वो भी अचीव हो गया है। अब मेरा टारगेट 189 से 199 का टारगेट है स्टील अथॉरिटी का। यूनियन बैंक 170 टू 50 गया है, 104 पे दिया था, 149 का टारगेट है, हमारा मीट हो गया। तो मेरा कहने का मतलब, अच्छी स्टॉक में लगाओगे, एनालिसिस करके लगाओगे, तो कभी भी आपको नुकसान नहीं होगा, और आने वाले टाइम में यू कैन मल्टीप्लाई योर कैपिटल। विद दिस वर्ड्स I will rest here. I will thank you to all for listening me. कोई किसी की क्वेरी हो, कोई डिस्कशन करना चाहता हो, तो I am open to it. So over to you, Monica ji. If any query, I can Yes. take. Very informative session, Ajay sir. Thank you. Thank you, thank you. एक मिनट। यस अजय जी। सुमित भाई, मेरे एक कंप्लेंट रहेगा, एक कासा का प्रोग्राम फिजिकली कराओ। मैं Yes, सिर्फ sir. ये कह सकता हूँ, 2 घंटे का प्रोग्राम होगा, 4 घंटे कोई उठ के नहीं जाएगा मैम। तो ये प्रॉमिस है, मैं सबके सामने कह रहा हूँ कि अभी जल्दी आपका एक सेशन फिजिकल कराऊंगा, है ना, सेंट्रल लोकेशन पे, जिससे कि सारे लोग पार्टिसिपेट कर सकें। और आज एक की भी अभी कई अभी सारी आपको आपने अपडेट जो कर टिप्स, दूं, विकास में सीए स्टडी सर्कल का 7th सेवेंथ को आपका है। आई विल शेयर सर, आई विल शेयर टू ऑल मेंबर्स। 7 तारीख को आपका फिजिकल प्रोग्राम है विकास मांग स्टडी सर्कल का। और हम कासा पे भी जल्दी आपको फिजिकल इनवाइट करेंगे। और आज भी बहुत सारी चीजें आपने सजेस्ट करी, और ये दिवाली दिसंबर 2018 में जो आपने सजेशन दी थी सर, दैट इज आल्सो एंड ग्रेट। सुमित आई विल ऐड यू वन मोर यस सर, थिंग। मैं यस सर। इस दिवाली पर अपनी रिकमेंडेशन स्किप करना चाह रहा था, बिकॉज आपको पता है कि 2 नवंबर को मेरे को अटैक आया था, तो आई वाज 3 को मेरा स्टेंट डला है। जी आई वाज नॉट एबल टू वर्क ऑन इट। फिर भी मैंने उस दिन, संडे था, पूरे सुबह से लेकर शाम तक, दो आई वाज नॉट अलाउड टू सिट सो लॉन्ग, उसको स्टडी करके मैंने 10 स्टॉक की रिकमेंड। और आप निफ्टी का भी टारगेट देखना, 19,425, 23,000 का टारगेट दिया, वो मीट आउट हो गया है। आज नहीं, आज से पहले ही हो गया था। सेंसेक्स का 77,000 का टारगेट मेरे हिसाब से आज मीट आउट हो गया होगा। मैंने आज सेंसेक्स नहीं देखा है, हो गया, ऑलमोस्ट होने वाला है। और आपका जो बैंक निफ्टी का 52,500 आज 51,000 ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। तो ये टारगेट भी हमारा, और जून में ये सारे, अगर कोई टारगेट रह भी गए होंगे, जून में सारे टारगेट मीट आउट हो जाएंगे।
So, Yes, sir, yes, sir. really you are putting hard work to analyze the fundamental of stock market. और आपकी सजेशन भी कहीं ना कहीं appropriately going है. और I hope सुमित जी एक क्वेरी आई हुई है चैट बॉक्स Yes, में, Asha तो ji, मोनिका please इफ take यू up. कैन टेक दैट क्वेरी. Yes, Monica, Yes, please. yes. Query is, can you throw some light on PE ratio? पी रेशियो, Yes. देखिए पी रेशियो जैसे मैंने कहा कि हायर द पी रेशियो एंड इट्स नॉट गुड. गुड इन द सेंस लोअर द पी रेशियो इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल टू इन्वेस्ट. आज मैं बात करूं, आप किसी भी पब्लिक सेक्टर शेयर्स को उठा लीजिए, मैं एक आईओसी का एग्जांपल दूंगा. आईओसी का सॉरी पब्लिक सेक्टर्स एज ए होल फाइनेंशियल ईयर 2024 में पब्लिक सेक्टर enterprises has earned a profit of 5 lakh crore first time. For your information, SBI is the company which is paying highest ever tax, highest ever profit of around 81,000 crore rupees, followed by LIC roughly 60,000. Then I think IOC number 3 पर है, 41,000 करोड़ का इसका प्रॉफिट है. तो आज मैं पी रेशियो को मैं एग्जांपल दूंगा, मैं जाकर के आईओसी के साथ में लिंक करना चाहूंगा. तो बिकॉज आई एम अभी जो 170 रुपए का 68 रुपए का रेट चल रहा है, मैं इसको 300 रुपए का रेट देखता हूं कहीं ना कहीं 2024 में. वो बताता हूं क्यों. 30 रुपीज पर शेयर इसका अर्निंग प्राइस वो है, ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर 30 रुपीज, 31 रुपीज, 30 रुपीज 50 पैसा. ऐसा 2024 का आप देखोगे तो 30 रुपीज पर शेयर. और अभी जब मैंने इसको रिकमेंड किया वापस, तो ये शेयर रफली 165 के आसपास चल रहा है. तो 165 का प्राइस डिवाइडेड बाई 30 रुपीज, तो पी रेशियो कितना है, 5.5. आप किसी भी स्टॉक का पी रेशियो उठाकर देख लो. तो लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो एक अप्रोच थी मैनेजमेंट को लेकर के, पब्लिक सेक्टर, खासतौर से पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के मैनेजमेंट को लेकर के, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज बने क्यों थे और बनने के बाद क्या हुआ, वो कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकल चंगुल में फंस गए जाकर के. वो पॉलिटिकल, आज मैं एयर इंडिया की बात करूं तो एयर इंडिया में क्या होता था, वो एक ये मानते थे ये तो केवल नेता लोगों के लिए फ्लाइट है. एक टाइम ऐसा भी था. तो अगर हम सारा बोझ जो है उस पर डाल देंगे तो कहां से परफॉर्म करेंगे. तो पब्लिक सेक्टर को कहीं ना कहीं पैसा अट्रैक्ट करने और एक्सट्रैक्ट करने की मशीन बना रखा था. आज पब्लिक सेक्टर को प्रॉपर मैनेजमेंट दिया गया है, उनको प्रॉपर कहते हैं ना पावर दी गई है कि आप अपने 2 साल के फाइनेंशियल को एडवांस में डिस्कस कीजिए, जाकर आप अपनी प्रेजेंटेशन दीजिए. तो कहीं ना कहीं उस पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के कंपटीशन में लाने की कोशिश होती है. पब्लिक सेक्टर का कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है, बार्डिंग 1 और 2 अगर आप देख लीजिएगा, जो कि मोनोपोली वाली कंपनी ना हो. आईओसी की मैं बात करता हूं. आईओसी का मार्केट कैपिटलाइजेशन इज जस्ट 2.5 लाख करोड़. आप लोग कोई उठा करके मनी कंट्रोल खोलिएगा, देखना क्या है. अगर मेरे पास 1 लाख करोड़ रुपए हो तो मैं सबसे पहले आईओसी के शेयर खरीदूं, सारे शेयर खरीदूं मार्केट से. इसका वैल्यूएशन कम से कम होना चाहिए 25 लाख करोड़. दिस कंपनी इज बिगर देन द रिलायंस कंपनी. आई टेल यू, रिलायंस पेट्रोकेम से कई गुना बड़ी कंपनी है. लेकिन कहाँ है, पहले क्या होता था कि आईओसी के डाउन करने के लिए गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी लाती थी, कुछ प्राइवेट हैंड्स में खेलती थी. आज वो चीज नहीं है. तो आज क्या हो रहा है, प्रॉपर वैल्यूएशन निकल के आ रहा है. तो मैं जब बात करता हूं, जब मैं व्हेन आई एम रिकमेंडिंग पब्लिक सेक्टर स्टॉक, तो मैं आई एम वेरी मच कन्विंस्ड कि ये स्टॉक्स यहाँ से 3 गुने होंगे. यहाँ से आप देख लेना, आप मेरी बात को, सारे शेयर का रेट आज आप नोट कर लेना. और ये जो पीएसई का जो इंडेक्स है, आज आई थिंक 11,500 के आसपास आ रही है. दिस इज गोइंग टू बी 24,000-25,000 इन नेक्स्ट 5 years. फॉर दैट, तो पब्लिक जब बात हम करते हैं पी रेशियो की बात करते हैं, तो पी रेशियो जितना कम होगा तो उतना हमारे लिए फंडामेंटली हमारे पास क्या है, रिस्क हमारी ज्यादा कवर हो जाती है. बिकॉज वी आर गेटिंग ए चीपर स्टॉक एट ए हायर वैल्यूएशन बट चीपर प्राइस पे मिल रहा है. तो आईओसी का मैं स्टॉक बात करूँ या ऐसे कोई पब्लिक सेक्टर आप देखोगे, आज एचएएल की कंपनी ले लीजिएगा. आप एचएएल को क्या अभी काउंट कर रहे हैं, 5,200-300 रुपए का रेट आज है इसका. और अभी आज से 7-8 months बैक, 1 year, विद इन 1 year
इसको स्प्लिट किया गया है, जैसे स्प्लिटेड प्राइस, इसका मतलब 10,500 रुपीज का रेट हो गया है। सुमित, नोट माई वर्ड्स, मोदी 3.0 में 15,000 रुपए का रेट आप HAL का देख लो, 12,500 से 15,000 का रेट आप HAL का देख लोगे। सर लग रहा है सर, राइटली इट इज गोइंग ऑन, बिल्कुल लग रहा है सर। आपका वो रेमंड 2,200 रुपए का टारगेट दिया था, 2,200 का टारगेट पूरा हो गया, जी तो वो ये सारे उस टारगेट पे जाएंगे इस पर। एनी अदर क्वेरी? आशा जी, एनी अदर क्वेरी? आई थिंक बहुत सारी चीजें डिस्कस हो गई ऑलरेडी। सर एक ऋषभ जी और धीरज जी, यू वांट टू ऐड एनीथिंग, यू कैन। One query is there from Smriti ji. Monica, can you please take? Monica ji? Let me read. हाँ. Yes, yes. What is the strategy for tomorrow voting result? What is the strategy for tomorrow voting result? Result नहीं लिखा है. अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार। बेसिकली ये जो आपके जो एग्जिट पोल्स आए हैं मेरे हिसाब से अंडर एस्टिमेटेड है। आई एम सीइंग 380 टू 420 सीट्स के बीच में कहीं कोई फिगर आएगी। ओके, तो सर एक बिग जंप आप देखना चाह रहे हैं कि कल एक और? रीचेस नियर टू 400, निफ्टी विल टेस्ट 24,000 टुमारो इटसेल्फ। ओके ओके, तो आपके हिसाब से कल एक और बिग जंप? 700 पॉइंट का मैं बोल के जा रहा हूँ। कल निफ्टी अगर ये 400 की रेंज में आ गए तो कल निफ्टी, और 12 बजे तक ये आ गए तो 12 आ गए ना आपके पास ट्रेंड्स आ गए कि ये 400 के आसपास है, तो निफ्टी 24,000 की रेंज में पहुंच जाएगा, चाहे वो 23,800 जाए या 24,000 जाए, इसकी रेंज में पहुंच जाएगा। सर लास्टली एक क्वेश्चन मैं भी पूछना चाहूंगा ऑन बिहाफ ऑफ ऑल मेंबर्स। आज और कल की मार्केट को देखते हुए, आज का देखा और कल का मार्केट जो होने वाला है, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए? क्या इन्वेस्ट करना चाहिए अभी या होल्ड करना चाहिए अभी? सर इसमें पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा हाँ बताइए। कि बेसिकली क्या है सर, आज की डेट में मार्केट में बहुत सारे र्यूमर्स ही कहेंगे, र्यूमर्स आ रहे हैं कि मार्केट 10 से 15% करेक्ट हो सकता है, करेक्शन की टुवर्ड्स जा रहा है, आना है, तो उस चीज को भी ध्यान में रखते हुए क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए? ये र्यूमर कब से आ रही है? ये ऋषभ जी बोल रहे हैं कि? हाँ जी सर। ऋषभ जी, ऋषभ जी, ऋषभ जी। ऋषभ जी, ये र्यूमर कब से आ रही है? सर र्यूमर्स तो सुनते सुनते 6 महीने हो गए। तो 6 महीने में कितनी मार्केट गिर गई? हार्डली 5%। एक नहीं, ट्रेंड में मार्केट चल नहीं रही गिरी है। है। नो 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 नो, लिसन टू मी। मैं गिरी नहीं, एक ट्रेंड में चल रही है, नीचे जाती है बाउंस बैक कर नो जाती नो 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 है। नो, लिसन सर, ऐसा है मार्केट में ये र्यूमर चलती रहेंगी ये, और ये ठीक है, र्यूमर 15,000 से चल रही है। बिल्कुल ठीक है। 2,000 पॉइंट की करेक्शन आएगी, वो 6-8,000 तो बढ़ चुका है। तो डोंट लिसन एनीबॉडी, अपनी ईयर्स में रुई लगाकर, कॉटन लगाकर के बंद कर लीजिए इसको। डोंट लिसन व्हाट योर कन्विक्शन इज सेइंग, लिसन टू दैट। ठीक है जी। ये मार्केट में ये वो लोग हैं जो पैसा वो करेक्शन के चक्कर में इन्वेस्ट ही नहीं कर पाए, आज भी वो देख रहे हैं। इन्वेस्ट ही नहीं कर पाए, राइटली सेड आपने कि करेक्शन आएगी तब खरीदेंगे। और ये और एक चीज बता दूं मैं आपको, हम्म, जब करेक्शन जिस दिन 2,000 की आएगी, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, बंदा जिंदगी में नहीं खरीद सकता स्टॉक। उस टाइम माहौल ऐसा होता है जी, वो डर के मारे नहीं खरीदता। सर मुझे याद है अजय सर, मैं एक रिकॉल कर रहा हूँ 2 साल पहले जब युद्ध स्टार्ट हुआ था, कौन सा, यूक्रेन यूक्रेन का? रशिया यूक्रेन। इसराइल और नहीं हाँ, सॉरी, नहीं यूक्रेन रशिया युद्ध की बात कर रहा हूँ मैं। तब रशिया मार्केट यूक्रेन ने की बात डेली की। 1,000 1,500 डाउन दिया था 5-7 दिन लगातार। तो उस समय लोगों के परसेप्शन बदल गए थे, तब लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए था, तब लोगों ने इन्वेस्ट नहीं किया। तो कि हम सोचते हैं कि उस टाइम मार्केट पता नहीं कहाँ जाके ठहरेगा, उस समय ये मैं स्टेप आपको बताता हूँ, जब ये फ्राइडे को सारे लोग घबरा रहे थे तो मैं 49,000 की बैंक निफ्टी की कॉल लेकर गया हूँ, आज डबल से ज्यादा बेचा मैंने। राइट सर, राइट। तो मार्केट को अगर आप ये देखोगे, जब पब्लिक सब घबरा रही हो, जब सारे रो रहे हो मार्केट में कि अब तो गया हाय तो वह बचा रहे हो, दैट इज द राइट टाइम टू बाई। मार्केट का एक फंडामेंटल समझ लो। और जो 2,000 पॉइंट की बात कर रहे हैं, वो कभी ना कभी बोले कि देखो, अब मैंने बोला था आपको 2,000 पॉइंट की करेक्शन आ गई, देखो कभी ना कभी तो मार्केट का नेचर है ये, राइट। राइट। 8,000 पॉइंट बढ़ने के बाद मार्केट में अगर 2,000 पॉइंट की करेक्शन आ गई, अभी आप देखोगे, अभी जब व्हेन आई वाज मई स्टार्टिंग में, व्हेन आई वाज इन यूएसए, तो आई वाज सीइंग बहुत सारा सोशल मीडिया पर नेगेटिव न्यूज चल रही है। उस समय निफ्टी आई थिंक 21,817 तक आ गई थी शायद,
ठीक है, तब भी मैंने ग्रुप में लिख के आया था कि आई एम सीइंग एनडीए इज गेटिंग मिनिमम 350 सीट्स। मैं अभी आपको व्हाट्सएप पे खोल के दिखा सकता हूँ। एंड आई वाज एक्टिंग अकॉर्डिंगली। सो पब्लिक क्या सोच रही है, पब्लिक ये सोशल मीडिया को छोड़ दीजिए आप लोग, राइट आप सर। अपना अपना एनालाइज कीजिए। आपको लगता है, मैं आपको बोल के जा रहा हूँ कि पब्लिक सेक्टर को आज यहाँ से डबल आप विद इन फ्यू इयर्स आप देख लीजिएगा। धीरज यू वांट टू ऐड? धीरज आप हैं क्या? अदरवाइज कंक्लूड करते हैं, और मैं बिल्कुल सर को एक बार फिर से प्रॉमिस करना चाहूंगा कि जल्दी ही हम आपको फिजिकल सेशन में इनवाइट करेंगे, जहाँ पर सर फेस टू फेस हम आपकी इनपुट्स को और ज्यादा लेना चाहेंगे। सर 2 मिनट सर यूएस इलेक्शन पे भी बोलिए। यस हेलो हाँ जी जी, अमित जी। सर, मैं बोल रहा हूँ 2 मिनट सर, यूएस इलेक्शन, इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट के बारे में भी कुछ लाइट डालिए उस देखिए पे। मैं आपको बताता हूँ, यूएस का मार्केट ऐसे ही चलता रहेगा। 38,000 इसका सपोर्ट लेवल है, 40,000 रेसिस्टेंस लेवल, 2,000 पॉइंट पर मार्केट डॉजेंस घूमती रहेगी। राइट, जहां तक यूएस का जो इलेक्शन है, अभी आई थिंक नवंबर या दिसंबर में इलेक्शन है। अभी आप उसको ज्यादा टेंशन मत लीजिए यूएस के लेकर। अभी तो आप अपनी जो फंडामेंटल है या इकोनॉमी के या गवर्नमेंट आने के, आप इस पर राइट कीजिएगा। इवन यूएस मार्केट फॉल्स बाय 3,000 पॉइंट, यहाँ बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। यूएस मार्केट बढ़ता भी है तब भी यहाँ बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। यहाँ मार्केट चलेगी न्यू गवर्नमेंट के साथ। और मोदी 3.0 में मैं इकोनॉमी को भी और ही बेटर होते हुए देख रहा हूँ। पब्लिक सेक्टर स्पेसिफिक बहुत बेटर होते हुए देख रहा हूँ। इंटरेस्ट रेट में कम होते हुए देख रहा हूँ। यहाँ का जो इन्फ्लेशन है वो कम होते हुए देख रहा हूँ। यूएस में प्रॉब्लम क्या है कि गवर्नमेंट चाहती है रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो, लेकिन जो फेड के जो कंस्टिट्यूएंट है ना, वहाँ के जो गवर्नर्स है, स्टेट गवर्नर्स है, उनकी कुछ ना कुछ डेली कोई ना कोई, मतलब कहते हैं ना, जब हर इंसान चौधरी बैठा हुआ वहां पर, कुछ ना कुछ स्टेटमेंट आती है, मार्केट को खराब करते रहते हैं। एक प्रॉब्लम यूएस में क्या है, एक तरफ कुआ है तो दूसरी तरफ खाई है। राइट, वो कहते हैं इकोनॉमी बेटर होगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन नहीं होंगे, इकोनॉमी खराब होगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन होगी। तो इकोनॉमी जब खराब रिजल्ट आते हैं तब भी मार्केट गिरता है, अच्छे रिजल्ट आते हैं तब भी मार्केट गिरता है। वो चाहते कि हमें, को अभी तक ये समझ में नहीं आया। तो ऐसा चलता रहेगा, उसको आप बिल्कुल भूल जाइए। अभी अभी तो आप देखिए कि ये गवर्नमेंट बनकर आ रही है, ये फुल मेजोरिटी की गवर्नमेंट आ रही है, डिसिसिव मैंडेट मिल रहा है, डिसिसिव गवर्नमेंट आ रही है। तो आप भी मान के चलिएगा कि दिवाली तक निफ्टी 27,000 टच कर सकता है, 27-28,000, 28,000। आप यहाँ का लेके चलिए। थैंक यू। थैंक यू सर। मोनिका जी, आई थिंक Sir. इट्स टाइम टू कंक्लूड। Yes, sir. Sir, Telegram channel, sir, your Telegram channel. टेलीग्राम चैनल जो हमारा ऊपर नाम लगा ना, स्टॉक द मनी, हाँ यही नाम से है, आप इसी सर्च कर नाम से है। लीजिएगा, जो कि स्टॉक STOX द मनी, आप उसको दिखाइएगा, उसको ज्वाइन कर सकते हैं आप। तो उसमें मैं Okay, शेयर sir. करता रहता आशा जी, नाउ टाइम टू कंक्लूड द टुडे सेशन। Yes, thank you, Very- Sumit ji. Yes. I think इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड उस पे भी सर ने ऑलरेडी डिस्कस किया है अपने सेशन में। हूँ। देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए मैं बता दूं, मैं टाटा Yes. टेल्को की बात कर लेता हूँ, हालांकि स्टॉक स्पेसिफिक नहीं करना चाहिए। मैं इसमें बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं देखता हूँ, ऑलरेडी प्राइस बहुत पहुंच गया है। 900 रुपए नीचे का रेट, या और ऊपर 1,000, 1,050। तो अभी फॉर द टाइमिंग साइडलाइन रहेगा, स्टे अवे विद। अगर किसी के पास है तो प्रॉफिट बुक करके आप PSU में स्विच कर सकते हैं, वहां ज्यादा रिटर्न मिलेगा। जी आशा जी। So with this, thank you Sumit ji for giving this opportunity to thanks our speaker today, Ajay Singhal ji, and all the participants. And sir, काफी अच्छे से आपने प्रॉपरली इसको पूरा बताया कि मतलब शेयर मार्केट में जब तक आप फंडामेंटल एनालिसिस और प्रॉपर टाइम नहीं दे रहे हो तब तक इसमें लगने की जरूरत नहीं है। तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि बीइंग अ सीए वैसे भी हमें सब चीज को एनालिसिस करके ही बढ़ना चाहिए आगे। तो इट्स अ गुड पार्ट। एंड मैं सुन रही थी, ऑल्दो मैं बहुत रेयरली इसमें करती हूँ शेयर मार्केट में डील, बट जो आपका सेशन सुना पूरा, उसमें लगा कि ये बिल्कुल करेक्ट अप्रोच है टू इन्वेस्ट इन द मार्केट। आशा जी, अगर आप नहीं करते तो करना स्टार्ट कर दीजिएगा, मैं बता हाँ रहा सर, हूँ। अब सुमित सेशन सुन सुमित के ने लग रहा है कि बहुत पढ़ के कर सकते हैं इसको, थोड़ा कोशिश करें तो। सुमित ने बहुत पैसा कमाया है मार्केट में, मेरी रिकमेंडेशन पर भी।
तो मैं ये कह सकता हूँ वो पार्टी शार्टी देता नहीं है ये मेरे को, ये बिल्कुल भी। राइट राइट आप सर, देखो, राइट। आप पूछ रहे थे तब सुमित जी कॉल पे गायब हो गए थे। हाँ जी। टू बी ऑन लाइटर साइड। तो थैंक यू सो मच सर। मैं सुमित ये कह सकता हूँ कि फिजिकल सेमिनार में जो इन पर्सन सेमिनार होगा ना, मैं हर मेंबर को वाइब्रेंट कर दूंगा मार्केट को लेकर के। सर बिल्कुल, आप ईगरली, हम भी वेट कर रहे हैं कि जल्दी आपका सेशन प्लान करें। थैंक यू। और डेफिनेटली जो आज एक डेमो मिल पाया 1 घंटे में, उस चीज का हम एक्सटेंसिवली बेनिफिट लें आपके इस फेस एंड टू फेस के माध्यम से। फिजिकल में इंटरेक्शन और भी ज्यादा अच्छे से हो जाता है इन ए बेटर वे। वहां पे कुछ क्वेरीज किसी की और आ Yes, रही हैं, yes, ऑफ yes, रिकॉर्ड भी, तो ही और शी में आस्क। So, एंड रिगार्डिंग पुन्नी सिंगला जी सर, सब्सक्रिप्शन प्राइस, आई थिंक पुन्नी जी आप उनके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो सर के, स्टॉक्स द मनी, यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन, राइट अजय सर? हाँ जी, एक टेलीग्राम के साथ साथ मेरे पास व्हाट्सएप का भी एक है, व्हाट्सएप पे भी मैंने बनाया हुआ है। इफ यू वांट यू कैन शेयर इट इन चैट सर। हाँ, मैं उसको व्हाट्सएप का मैं सुमित को शेयर कर देता हूँ। सुमित जरा उसका लिंक आप शेयर कर दीजिएगा चैट में। ठीक है सर, तो ठीक है। अभी मैंने इसको व्हाट्सएप पे भी किया है, स्टार्ट इसको, बिकॉज मेरे को पता है कुछ मेंबर्स उस पर नहीं है, और इस पर किया। 1 मिनट आप शेयर कर दीजिएगा उस पर। तो रिकमेंडेशन आज की पहले अब व्हाट्सएप पर आने लगी मेरी। व्हाट्सएप पे पहले देता हूँ, टेलीग्राम पे बाद में देता हूँ। आई एम प्रमोटिंग व्हाट्सएप नाउ। ओके सर। So with this, I would like to thanks each of the participants for their time and patience listening. And thank you CASA for organizing such a wonderful webinar on every Monday. And apart from that, definitely we will be coming up with the different series. Sir. Monday, 5 PM. Celebration, and today's panelist Rishabh and Dheeraj ji, and today's coordinator Monica ji. Thank you so much for your time. थैंक यू अजय भैया, Thanks थैंक यू everyone. वंस अगेन। मैं Thank you. एक बार लिंक शेयर कर देता हूँ, फिर आप जरा उसको कंक्लूड करना। Yes sir. ओके मेंबर्स ओके कैन ओके, जस्ट Yes सर, sir. लिंक टेलीग्राम पे नहीं जाएगा? टेलीग्राम पर, तो टेलीग्राम पर भी शेयर कर देता हूँ मैं। हाँ, क्योंकि टेलीग्राम का ही वो मैसेज डाल दिया था मैंने, स्टॉक द मनी। टेलीग्राम पे तो वैसे ही डाउनलोड हो जाता है, सर्च करेंगे ओके, तो हो जाएगा। हाँ, तो टेलीग्राम का मैंने डाल दिया था, स्टॉक द मनी। एनीबडी कैन ज्वाइन एंड लर्न अबाउट स्टॉक मार्केट। ये मैंने शेयर कर दिया है। ओके, You got it? यस सर, यस सर, यस Yeah, please share it on this. श्योर सर, जस्ट ए मिनट। टेलीग्राम में शेयर कर दी, वो भी कर दूं मैं? हाँ, मैं कर रहा हूँ सर, शेयर कर रहा हूँ। टेलीग्राम में शेयर कर तो मैंने शेयर चैट बॉक्स में कर दिया, टेलीग्राम भी लिख दिया है, और ये भी कर दिया सर। So with this, Yes. Yes Sumit ji. now to time This to we can conclude. conclude. Thank you to every participant for wonderful interaction and learn about the stock market. Ajay bhaiya, thank you very much once again. Thank you दोस्त, thank you. Thank you Asha ji, Monica ji, thank you Asha ji, Thank and you all the Sumit sir. participants for Thank you so much. listening me and liking my deliberation. Sumit ji, please close the meeting. Thank you, thank you, thank you. तो see you on 7th सुमित। Yes sir, sure sir, sure sir. आप इनवाइट कर लीजिएगा जो भी आ बिल्कुल सकते मिलेंगे हैं। सर, मैसेज भी फॉरवर्ड करूंगा मैं। हम मैसेज डाल दीजिएगा। Thank you.